Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is gonna be we are gonna meet your future self, okay? And we are gonna take an interview and we are gonna conduct this interview और आपकी future self आपको बताएगी, आपकी current self को भी, आपकी present self को, कि आपका career, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके फाइनेंसेस और जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहती है वो सब आपको इस रीडिंग में मिलेगा. सो आर यू एक्साइटेड टू मीट योर फ्यूचर सेल्फ? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 piles. सो पाइल नंबर 1 इज द क्लाउड्स, पाइल नंबर 2 इज मून, पाइल नंबर 3 इज सन. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. एंड वट एवर कार्ड यू गोना पिक, वट एवर पाइल यू गोना पिक, इट्स गोना बी योर रीडिंग. वो आपकी पाइल होगी, वो आपकी रीडिंग होगी. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीन शॉट थोड़ा पास से, ताकि आप इन कार्ड्स को अच्छे से देख सको. और जो भी आपको कार्ड सुंदर लगे, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाए, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, सो अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the clouds card here. Let's get started with your interview. So 10 years from now जो आपकी self है, future self है, कैसी है? What have you become 10 years from now? Let's meet your future self, pile number 1. What have you become, pile number 1? How things are in your life? Who you have evolved into, what you have become. Future self 10 years from now क्या बताना चाहती है आपको, आपके बारे में. Okay, we have the Hierophant. All right, okay. We have Page of Cups. Beautiful. Then we have Strength card. Okay. Then we have King of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. Really a bright future, pile number 1. You do have really a bright future. And the end of the deck we have the Knight of Wands. You do have really, really bright future, a good future ahead. So number 1 is, I do feel many of you are in the law field or many of you want to become mentors, teachers, professors. बड़ी पढ़ी लिखी पाइल यहाँ पर नजर आ रही है. Hierophant, it does shows me that you are in a position 10 years from now where people are going to look up to you, where people are going to admire you, where people will go to you or come to you to get some answers. All right. So some of you have become judges, some of you have become professors, some of you have become teachers, some of you have also become some like dharmic guru. I know it sounds really weird, but many of you can actually become dharmic guru, dharam gurus. Yes. And और वो भी पढ़े लिखे और बहुत ही काबिल धर्म गुरु. Like some of you or many of you are becoming like that. With the Page of Cups, I do feel there is this charm, there is this spark within you, there is this inner child which is still alive 10 years from now, thriving I should say. और एक आपके अंदर यूनिकनेस, एक आपके अंदर एक स्पार्क ज़रूर है, तब भी वो स्पार्क बना हुआ है. No matter what age you
get into like 10 years from now, जो भी आपकी एज है, whatever the age is, still that inner child is very much alive. There is this uniqueness. जो समय है उसने आपका वो चार्म नहीं लिया. You still look really youthful. You still look really beautiful, elegant, handsome, beautiful. And with the strength card, I do feel कि आपने अपनी यूनिकनेस को, अपनी वियर्डनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है. स्पेशली पेज ऑफ कप्स के साथ कंजंक्शन में है स्ट्रेंथ कार्ड. पेज ऑफ कप्स में इस कप से जो है एक फिश निकल के आ रही है, विच इज़ अ रियली वियर्ड थिंग. आई मीन इस कप से तो पानी पीते हैं ना, इससे फिश कैसे निकल कर आ रही है. सो पेज ऑफ कप्स डज रिप्रेजेंट समथिंग यूनिक, समथिंग रियली अनऑर्थोडॉक्स, समथिंग वेरी अनकन्वेंशनल, समथिंग रियली वियर्ड, बट एट द सेम टाइम एक सरप्राइज फैक्टर ऐड होना. तो स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये पेज ऑफ कप्स है, विच गिव्स मी दिस मैसेज, विच शोज कि जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है, इट्स रियली यूनिक, इट्स रियली डिफरेंट, और आपने अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करा है. एंड you will like to be alone, pile number 1. You will like to of course आप दूसरे लोगों से बहुत सराउंडेड यहाँ नजर आ रहे हो, बट यू ऑल्सो लव योर अलोन टाइम. कहीं ना कहीं मैनी ऑफ योर इंट्रोवर्ट्स, और हाँ आपकी सोशल बैटरी डाई डाउन करती है, एंड बट यू स्टिल हैव टू बी सोशल, क्योंकि वो आपका काम कुछ ऐसा है. बट योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग दैट यू डू एंजॉय विद अदर पीपल, बट यू ऑल्सो लव, literally you guys love to be alone as well, left alone. King of Wands का यहाँ पर कार्ड है, Knight of Wands का यहाँ पर कार्ड है, जो कि यही शो कर रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर रियली ट्रूली पैशनेट अबाउट. यहाँ पर भी इस पर्सन का एक थ्रोन है, यहाँ पर भी इस पर्सन का एक थ्रोन है, और यहाँ पर इस पर्सन का एक व्हीकल है, हॉर्स. सो इट डज शोज मी कि लाइफ में कन्वीनियंसीज है. गर्मी लग रही है तो एसी है, ठंड लग रही है तो हीटर है, कहीं जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह अपना व्हीकल है, आपके पास अपनी एक सीट ऑफ पावर है, और ये सब आपने अपने पैशन से जो है बनाया है. सो फ्यूचर सेल्फ इज शोइंग और इज टेलिंग दैट यू रियली हैव अ लग्जरियस लाइफ, कन्वीनियंसीज ऑफ लाइफ आपके पास है, एंड आप एक सीट ऑफ पावर पर भी हो. मेनी ऑफ यू गाइज विल हैव मागा नक्षत्र काइंड ऑफ प्रोमिनेंट हेयर, एंड इवन द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा प्रोमिनेंट. धनिष्ठा नाम में ही धन है, तो मनी ऑफकोर्स विल कम. मेनी ऑफ यू आर वेरी गुड सिंगर्स, एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आ सकता है, तो ये सब चीज़ें आप में होगी, क्वालिटीज़ आप में होगी, बट यू आर डूइंग समथिंग रियली यू आर पैशनेट अबाउट. एंड आई वांट टू से दिस थिंग दैट यू हैव, जैसे आपने क्लाउड्स वाला कार्ड भी जो पिक करा है ना, ये स्काई वाला कार्ड ये जो पिक करा है, इट डज शो कि यू हैव फोकस्ड. ये जो 10 साल के बाद का ये सीन हमें नजर आ रहा है, तो बिटवीन अभी से लेकर 10 साल तक जो है, यू आर एक्सपैंडिंग योर होराइजन, और यू आर काइंड ऑफ freeing yourself from the limitations and the boundaries of society. कहीं ना कहीं आपने अपने आप की रिस्ट्रिक्शन सारी खत्म करी है, एंड यू हैव बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड, एंड यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स अ बिगर पिक्चर. जो पेटी फाइट और आर्ग्यूमेंट है, आपने उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था, तभी आपकी 10 years from now ऐसी लाइफ नज़र आ रही है. And you have used your imagination, you have observed other people, you have been quiet. कहीं ना कहीं अभी के समय पर, ये आने वाले 2-4 सालों तक दूसरे लोग आपको ये कहे कि आपको कुछ नहीं आता, pile 1, you know nothing. Like people may make fun of what your belief system is, or people may make fun of what your opinion is. But you know what? आपने फिर भी अपनी opinion को raise करा है, और आपने अपनी पेशेंस का यूज करा है, और आपने दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा है, तब जाके यू हैव गॉटन दिस सीट ऑफ पावर, तब जाके यू हैव दिस इनर स्ट्रेंथ. आपको 10 साल बाद जल्दी से बेइज्जती भी फील नहीं होगी. कहीं ना कहीं यू हैव पुट ऑन दिस स्ट्रॉन्ग स्किन कि नो वन कैन रियली हार्म यू, नो वन कैन रियली टच यू in a way कि जो आपको uncomfortable feel कराए. You have really used a thick skin on yourself, and you also have started to believe in yourself, and you are trusting the process. तब 10 years from now जाकर जो है, you have become this. Your future self is saying, this is how you became this successful individual. I've gone through all these things.
तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. Let's get some more info about who you have become in the future, 10 years from now. Who have you become? Okay, so we have detective, great powers of observation and intuition, desire to seek out the truth. So yeah, we did talked about you have observed people, you have observed your situation. आपने एब्जॉर्ब नहीं करा है, आपने ऑब्जर्व करा है. एब्जॉर्ब होता है किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, जैसे स्पंज होता है वो हर चीज को अपने पानी को अपने अंदर ले लेगा. बट यू हैव नॉट बिकम अ स्पंज, बिकॉज इफ यू वुड हैव बिकम अ स्पंज देन ये आपका फ्यूचर नहीं होता. यू हैव बिकम ऑब्जर्वेंट. आप हर चीज को, हर पर्सन को ऑब्जर्व करते हो एंड देन यू नो काइंड ऑफ टेक अ डिसीजन, देन यू टेक अ स्टैंड. यू बिकम अ डिटेक्टिव. यू बिलीव कि मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मेरे को दूसरे पर विश्वास नहीं है. आई वॉन्ट टू गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. सो 10 years from now, yes, you are a very good detective. You have eye for detail. You know how to keep an eye on other people. You know how things are done. So you have become really mature pile number 1. 10 years from now, you know what you are doing. एंड ये आपकी डिटेक्टिव स्किल्स भी जो है ये यहाँ पर काम आ रही है, और ये आपने डेवलप करे. ये डिटेक्टिव वाली स्किल्स यू हैव डेवलप्ड विद इन 10 years. एंड आई ऑल्सो फील दैट यू कैन हैव शतभिषाक नक्षत्र प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. अगेन शतभिषाक अकर्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. धनिष्ठा भी एक्वेरियस में स्पेल करता है. धनिष्ठा वैसे कैप्रिकॉर्न से शुरू हो जाता है और एक्वेरियस में स्पेल करता है. सो यू कैन हैव प्रोमिनेंट प्लैनेट सन मून राइजिंग आत्माकार का इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्र. तो जैसे जो हमारा एक्वेरियस साइन है उसके अंदर जो है शतभिषाक नक्षत्र भी आता है. शतभिषाक वरुणा रिलेटेड नक्षत्र है एंड वरुणा इज सेड टू बी द चीफ ऑफ सिक्योरिटी. तो जो 1000 आईज है वरुणा की, जैसे हम जो इतने सारे तारे देखते हैं आसमान में रात को, तो वो तारे इट इज सेट कि वो वरुणा की आईज है, बिकॉज ही इज द चीफ ऑफ सिक्योरिटी. सो आज की डेट में इसको सीसीटीवी कैमरा वाले लोग भी जो हैं वो शतभिषाक नक्षत्र से है. या फिर समवन हैज राहु इन द नवांशा असेंडेंट, मतलब नवांशा के असेंडेंट में राहु अगर शतभिषाक नक्षत्र में है, हाई चांसेस दैट वो अपने भेष बदलता है वो इंसान, और वो दूसरों पर नजर भी रखता है. So you can again have Satabhishak Nakshatra kind of prominent in your chart, pile number 1. Let's see इस Osho deck से क्या information आती है. So we have politics. We have politics. Somehow you can meet many politicians as well 10 years from now. Your future self is saying that you are meeting some fake people, but as well as people who are in politics. And yes, someone if has to be in politics, if they are thriving, they are kind of there is fakeness for sure. There is that, because diplomacy to chahiye na. So somehow you're meeting you're meeting some political groups. There are people who are high up in the government and they are trying to meet you. They are there to meet you क्योंकि उनको आपसे कोई फ़ायदा ज़रूर है. That's why they're coming to you. So ये यहाँ पर information है. You have a high status, pile number 1, 10 years from now. And you are an important person pile number 1, 10 years from now, for the country, for people. You are really an important person. You are someone जिसको लोग admire भी करते हैं, पसंद करते हैं, and somehow you have gained fan following as well. So that's there. Then we have ripeness. So 10 years from now, अब जो अंगूर खट्टे नज़र आते हैं वो मीठे हो जाएंगे आपके लिए. 10 years from now जो आपने हार्डवर्क करा है, जो आपने एफर्ट डाला है, जो आपने बेइज्जती सहन करी है, फाइनली फ्रूटिशन का टाइम आ गया. फाइनली आपको उसका हार्डवर्क का फ्रूट मिलेगा. अपनी सहनशीलता का, अपने समाने की शक्ति का जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला है. 10 years from now आपकी लाइफ अगेन बहुत कंफर्टेबल है, और आपकी लाइफ जो है यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव बिन थ्रू. आपको ऐसा फील होगा कि जो मैंने हार्डशिप्स फेस करी थी लाइफ में वो ज़रूरी थी, कि क्योंकि उन हार्डशिप्स की वजह से मेरी आज ये अच्छी पोजीशन है, मैं आज ये बना हूँ. अगर मुझे सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती, शायद मैं इन सब चीज़ों को हैप्पीली जो हूँ एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर मैं इसको रिजेक्ट ही कर देता या कर देती. सो यू विल फील कि वो जो मेरे साथ पास्ट में बुरी चीज़ें हुई है वो होना ज़रूरी थी, अच्छा हुआ हुई, क्योंकि उनकी वजह से जो है
I've become something. I have become this person. तो कोई गम नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है. Then we have, how can I know myself as absolute? It says be. So I do feel that you're existing, and I do feel that you're really humbled individual 10 years from now. You're really a humbled individual. Then we have, am I honoring my knowing? White-tailed deer, trust. So again, it shows that you are being really humble. And sometimes you feel कि आप like sometimes you may feel that you are not honoring yourself, you are not giving that free time or good time to yourself, you are giving yourself to humanity or giving yourself to society. But and sometimes you also feel 10 years from now your future self is saying, sometimes आप अपने आप पर शक करना भी शुरू कर देते हो, that will I be able to do it, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ या नहीं हूँ. Like you also start to question yourself, which again shows that you're really a humbled individual. But again, guidance है कि you are doing the right thing, go with what you are doing, go with the flow. That's the guidance here. बट हाँ, यहाँ पर जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो यही शो कर रही है दैट यू हैव बिकम समवन इम्पॉर्टेंट एंड यू स्टिल अगेन आर रियली हम्बल्ड एंड अ डाउन टू अर्थ पर्सन. दिस इज हु यू आर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समथिंग मोर. So we have beginnings. So 10 years from now, you have begin a new journey. Maybe 10 years from now, you are going to start something new in your career, start something new in your personal life as well. तो यहाँ पर वैसे करियर के मामले में जो नज़र आ रहा है, करियर तो यहाँ काफ़ी सेट नज़र आ रहा है. और जब बात आती है रिलेशनशिप के मामले में, पर्सनल लाइफ के मामले में, सो आई फील दैट योर फैमिली, योर पीपल हु यू लव, दे आर सपोर्टिंग यू. They have become your pillar of support. They have, they are behind you और आपको वो पीछे से support दे रहे हैं. You are loved and you are being supported. और finances यहाँ पर बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं. You're thriving financially. You're really thriving. और new beginnings का भी कार्ड है. Let me pull one tarot card for this, क्योंकि क्या नई beginning है. Let me pull some cards here कि ये किस बारे में new beginning है. Clarification for this beginning card. Okay, so we have 3 of cups here. So 3 of cups here shows that you're celebrating with your friends, you're celebrating with your family, the people you love, you're celebrating with them, and people who have high status in society, they have also come to celebrate with you. और कोई नई चीज़ जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है. What I do feel is कि जैसे we see in TV, right? We see news कि ये वाली बिल्डिंग जो है नई बनी है, तो इसका today is the first day to work in that new building. So something of that sort is happening 10 years from now for you. You are beginning something new in your career. You have maybe changed an office and you have built a new office for yourself, build a new place for yourself, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं. एंड देयर इज़ ऑल्सो मीडिया समहाउ, प्रेस. सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो यू आर समवन, पाइल वन, हु इज़ हाईली अचीव्ड. You guys have achieved something big 10 years from now. You have become really important 10 years from now for the world. एंड अगेन फाइनेंशियली और थ्राइविंग. करियर तो यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. और पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो गुड. योर फैमिली, द पीपल यू लव, दे आर रियली सपोर्टिंग यू, दे आर देयर फॉर यू. यू ट्रस्ट देम अ लॉट एंड दे ट्रस्ट यू अ लॉट. तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है. ऑल राइट, फाइल वन. सो या again, many of you are literally in politics, or you guys are politicians, you guys maybe are judge, maybe you guys are teachers or professors, but again आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर फेम भी मिला हुआ है. एंड नाउ दीज डेज फेम मिलना, इट्स समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ कॉमन. एवरीवन इज फेमस, सो यू आर ऑल्सो फेमस. बट स्पेशली 10 years फ्रॉम नाउ ये जो फेम नज़र आए, इट्स समथिंग बिग. ये एक वर्ल्ड वाइड फेम यहाँ नज़र आ रहा है. Thanks to social media that you have gotten this opportunity to get this kind of fame. All right, so
this is something which we are getting for you. Pile number 1. Again, astrologically अगर हम देखें तो what I see is के sign of Leo, sign of Aquarius and Capricorn यहाँ पर prominent है, यानी सन मून राइजिंग आत्माकार का planet holding the highest degree on your chart, ascendant lord or some other planet is placed in Leo, Capricorn or Aquarius. Leo में we have Maga nakshatra, we have Purva Falguni, Uttar Falguni, and again Uttar Falguni is a nakshatra related to the एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग आपको देख सकते हैं, लोग आपको सुन सकते हैं, लोग आपको एडमायर कर सकते हैं. पूर्व एंड उत्तर फाल्गुनी बेड रिलेटेड नक्षत्र है. तो बेड इज जस्ट नॉट फॉर रेस्ट बट बेड एक सीट ऑफ पावर भी है, क्योंकि आज की डेट में भी हम अगर विलेजेस में चले जाए तो देयर इज पंचायती राज, द पंच एंड द सरपंच सिट्स ऑन मंजा एंड प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल. सो बेड कॉट जो है और इसका सिंबॉलिज्म नहीं है बट वो सीट ऑफ पावर का भी सिंबॉलिज्म है. तो समहाउ अगेन उत्तरा एंड पूर्व फाल्गुनी पीपल वांट टू बी एडमायर्ड, वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर दे कैन प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल, वेयर दे कैन डू समथिंग फॉर अदर पीपल. स्पेशली उत्तर फाल्गुनी पर्सन वांट्स टू बी फेमस, wants to make deals, big deals with other people. फिर जैसे Capricorn sign में we have the nakshatra of Uttara Ashada, we have the nakshatra of Sravan and Dhanishta. Sravan, Dhanishta are the two nakshatras which are related to speech, which are related to being a very good spokesperson. एक rhythm को भी show करता है धनिष्ठा और श्रावण नक्षत्र. श्रावण itself shows कि अगर किसी का सन मून राइजिंग श्रावण नक्षत्र में है, आत्माकार का श्रावण नक्षत्र में, बड़ा सिंपल सोबर वो इंसान दिखेगा. बट वेन दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क एंड पीपल get really impressed or get really surprised कि अरे वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. और जब एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग हम करके दिखाते हैं तो नेचुरल सी बात है दूसरों की नज़रों में हम ज़रूर आते हैं. बड़े सिंपल सोबर सरावन पीपल नज़र आते हैं बट दे आर द वंस जिनको लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी खूब मिलता है और फेम भी खूब मिलता है. लोग उनसे बड़ा सरप्राइज्ड होते हैं, सरप्राइज महसूस करते हैं. फिर उत्तराषाढ़ इटसेल्फ वॉर विक्ट्रीज के बारे में नक्षत्र है. स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 इफ यू हैव सन मून राइजिंग इन उत्तराषाढ़ यू विल बी अनडिफिटेबल, इनविंसिबल, कोई आपको हरा नहीं सकता. एंड धनिष्ठा इज अगेन अबाउट द स्पोक्स पर्सन, इट्स अगेन अबाउट इवन डॉक्टर्स. तो ये चीज़ है. और फिर जैसे जो एक्वेरियस साइन है उसके अंदर अगेन धनिष्ठा स्पिल करता है, फिर शतभिषाक है एंड वी हैव पूर्व भद्रपदा नक्षत्र. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में जो है आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड जरूर होंगे मेन बर्थ हॉरोस्कोप में D9 नवांशा चार्ट में या फिर D10 दशांशा चार्ट में. दशांशा इज अ चार्ट विच इज रिलेटेड टू करियर. Alright, so this is who you have become in the future 10 years from now, pile number 1. So yeah, this was it. This was your reading. Do let me know in the comment section below what do you feel about your reading, what do you think about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel and do write angel blessing in the comment section below. And also if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the moon card here. Let's get started with your reading. So yep, मेन टेरो से हम शुरू करेंगे. आपका इंटरव्यू लेना, आपके फ्यूचर सेल्फ का इंटरव्यू लेना. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटरव्यू. लेट्स मीट योर फ्यूचर सेल्फ ऑफ 10 years from now. Okay, we already have a card. So we have 8 of Pentacles. All right, you're busy 10 years from now doing your work. You're living in a urban area as well. So we have the Empress, beautiful. We have 9 of Cups. You have achieved many things, many rewards. Okay. Then we have 3 of Wands. You're planning again to what to do next, what to conquer next in life. End of the deck mein we have Ace of Wands. Beautiful, beautiful. Ace of Wands shows 10 years from now inner child
is still very alive, uniqueness is still there. You're planning to move to a different city or a different country 10 years from now because it's just that you feel कि अभी मुझे वो चीज़ भी करनी है. Like you have achieved some of your hopes, wishes, desires 10 years from now. और कुछ होप्स विशेस डिज़ायर आपके ये भी हैं पाइल नंबर 2 कि आप डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेस जाओ, वेकेशन के लिए जाओ और कुछ समय रहने के लिए भी जाओ. मेनी ऑफ यू वुड वांट टू मूव टू दुबई और दुबई लाइक प्लेसेस. मेनी ऑफ यू वुड वांट टू मूव देयर. मेनी ऑफ यू वुड वांट टू ट्रैवल देयर बिकॉज यू हैव ऑलवेज वांटेड दैट. This is in your bucket list, I feel, going to Dubai or Dubai kind of places and living there for some time. And 10 years from now, you are living in you're living in the downtown, you're living in a city. Many of you may live in a place जहाँ पर tall buildings हो, जैसे New York, but it can be even, you know, your home country. इधर भी tall buildings के बीच में कहीं आप रह रहे हो, tall buildings के बीच में आपका घर है. And you're living in a flat, you're living in an apartment that can be seen, and you're working from home, and at times you do work in the office, but what I do feel is most of the time you work from home and you enjoy working from home. You enjoy working. आपको ऐसा नहीं होता कि सुबह उठना है अरे मेरे को अब काम करना पड़ेगा. Like you will not feel this way. You will be like, oh yes, I'm gonna work. This is what I always wanted to do. So you're living your kind of your dream career, dream life. Empress card यहाँ पर ये show कर रहा है that you have achieved a lot of things 10 years from now and you feel very proud of yourself. And जो भी आपने बीज बोए थे, यानी जो भी आपने सोचा था दैट हैव टू डू दिस, हैव टू डू दैट, तो उनमें से कई सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो. वो बीज जो है पेड़ में बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है और उसका आपको फ्रूट भी आना शुरू हो गया. मीनिंग उसकी वजह से आपको रिकग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं. एंड अवार्ड रिवॉर्ड मिल चुके हैं आई शुड से. और जैसे यहाँ पर ये पर्सन पिलर्स पर बैठे, सो इट डज शो दैट यू आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली. फैमिली आपका पिलर बन रही है, परिवार, लव्ड वंस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आपको एडमायर भी करते हैं. दे आर वेरी इम्प्रेस्ड और दे आर वेरी लाइक दे फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू. और 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू आर समवन जो एक के बाद एक चीज़ों को अचीव करना चाहता है और रुकते नहीं हो आप. 10 years from now as well, your body is young, your mind is young, no matter what your age is. Still, you know, मुझे ये करना है. You have a lot of things which you have to do, which you want to do. And especially pile number 2, I do feel you guys are introverted people. You guys keep things to yourself. और ये बहुत अच्छी बात है, तभी आपका फ्यूचर ऐसा है. ये बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को अपने तक रखते हो. जो आपके प्लान्स हैं उनको आप अपने तक रखते हो, क्योंकि वही बात है जब हम बीज बोते हैं, अगर हम दूसरों को बताने लग जाए मैंने बीज बोया, ये अभी पेड़ बनेगा, कुछ समय पेड़ बढ़ेगा, बार बार उस बीज को खोद के दिखा रहे हो, देखो ये बीज मैंने डाले, तो इट्स वो फिर बीज कभी भी, वो सीड कभी भी जो है वो प्लांट या फिर एक बड़ा ट्री बन नहीं सकता, क्योंकि बार बार हम उसको खोद के दिखा रहे हैं. तो समहाउ यू गाइज आर ऑल्सो वेरी सीक्रेटिव इन नेचर. पाइल 2, यू डोंट टेल व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर हेड, एंड द रीजन इज कि बहुत ज्यादा हौच पौच भी हो सकता है आपके मन में. So you are unable to tell other people what's going inside your head. But again, you guys are really secretive in nature. Again, the sign of Cancer, the nakshatra of Ashlesha can be prominent in your chart. या फिर the nakshatra of Dhanishta itself can be prominent in your chart. धनिष्ठा स्पेशली कैप्रिकॉर्न साइन वाला, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के ऑपोजिट कैंसर साइन है और धनिष्ठा लास्ट डिग्रीज में होता है कैप्रिकॉर्न की, तो बिल्कुल ऑपोजिट लास्ट डिग्रीज ऑफ धनिष्ठा के जो है कैप्रिकॉर्न साइन में, उसके ऑपोजिट है अश्लेषा नक्षत्र. अश्लेषा इज अबाउट नाग, स्नेक रूल नक्षत्र है, और अगेन ये नक्षत्र सीक्रेसी के बारे में है. So pile number 2, I do feel that you are introverted, you guys are really secretive, and अगर आपसे कोई गलती होती है तो you reflect back to it, you don't regret but you reflect back कि अच्छा ये मुझसे गलती है, I will not do it again, and you again keep things hidden. आपका जो subconscious mind है वो बहुत ज़्यादा strong है. कई बार आपका analytical logical skill work नहीं करता, but आपका subconscious आपको guide कर देता है that this is right and this is wrong, and when you listen to that तो आप right decisions ले पाते हो
और वो जो भी डिसीजन आप लेते हो अपने सबकॉन्शियस के बेसिस पर वो बिल्कुल करेक्ट होता है, एंड यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ दोज डिसीजंस. एंड कहीं ना कहीं यू आर समवन हु इज़ वेरी जेंटल एंड अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एंड यू हैव सीन मेनी साइकिल्स, यू हैव सीन मेनी फेजेस, एंड देन आपकी लाइफ ऐसी बनी है. सो देयर हैव बिन साइकिल, देयर हैव बिन फेजेस जो नेगेटिव थे, इतने अच्छे नहीं थे, और उसके बाद जाके यू नो एक पॉजिटिव साइकिल आपकी लाइफ में आया, एक बहुत अच्छी लाइफ आपकी बनी है 10 years from now. And you have also gone with the flow, and at times people may see that you're a bit dreamy or you're too emotional, or people may say that you live in your own fascination. But you know what, pile number 2, that is who you truly are. You living in fascination is also something जो आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में. फैसिनेशन में रहना भी हेल्प करेगा आपको लाइफ में. हर कोई अगर प्रैक्टिकल हो जाए इंसान, हर कोई अगर रियल सो कॉल्ड रियल वर्ल्ड में रहे तो दुनिया नहीं चल सकती है. वी नीड पीपल हु आर living in their fascination, who are living in their la la land, because these are the people who create something unique, who create something who create the happy world for other people. Alright, so you living in fascination is actually a good thing. You living in your own la la land is actually a good thing. क्योंकि इससे आप कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो जो सभी लोग देख के हैरान है. लाइक फॉर एग्जाम्पल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग सोच भी नहीं सकते थे पहले, बट जो लोग फैसिनेशन में जीते थे दैट ओ यू नो सम डे देयर इज गोना बी AI, दिस इज गोना हैपन, दैट इज गोना हैपन, दूसरे लोग उसको कहते थे ये क्या अपनी ख्यालों की दुनिया में घूमो, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट नाउ वी सी AI इज रियल. It's definitely real. So साइंस भी जो है साइलेंस से बनी है. साइलेंस, पहले हमें साइलेंस में रहना पड़ेगा, आइडियाज इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें वो सोचना पड़ेगा. तो एक तरह से साइंस साइलेंस से बनी है, पावर ऑफ साइलेंस से बनी है. और आप भी एक ऐसे पर्सन हो, पाइल नंबर 2, हु लाइक्स टू लिव इन साइलेंस, हु लाइक्स टू लिव अलोन, डोंट वांट टू बी विद अदर पीपल सो मच. यहाँ पर भी ये जो कार्ड्स आए हैं, इन सभी कार्ड्स में एक एक इंसान ही नजर आ रहे हैं, ज्यादा लोग ही नहीं नजर आ रहे हैं. बिकॉज यू आर समवन पाइल 2 जिसको अकेला रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि यू नो जब मैं अकेला रहता हूँ या अकेली रहती हूँ, दुनिया से कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हूँ, तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ और मैं कुछ अच्छी चीज क्रिएट कर सकती हूँ. बट यू विल ऑल्सो नोटिस पाइल 2 कि जब आप दूसरे लोगों के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर हो, अपने घर से बाहर गए हो, और आप दूसरे लोगों को देख रहे हो और दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं, यूर लुकिंग कि लोग डे टू डे वर्क कर रहे हैं, जो हाउस हेल्प है, जो मेड्स है, वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं काम करने के लिए, दूसरे लोग ऑफिस को निकल रहे हैं, कोई जो है कोई अपना काम कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. यू आर सीइंग नॉर्मल पीपल वॉकिंग देयर. तो जब हम नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं ना, हम भी नॉर्मल हो जाते हैं. हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल कहीं ना कहीं जो है गायब हो जाती है उस समय के लिए. बट जब हम अकेले बैठे होते हैं अपने कमरे में, तो हम सभी इन लोगों से डिस्कनेक्टेड है जो ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं. और संग का रंग लगता है, ये तो पता ही है हमें, संग का रंग लगता है. तो आपका वो संग का रंग छूट जाता है जब आप अकेले रहते हो. अकेले में आप अपनी कंपनी में हो, आपका अपने ऊपर ही असर आ रहा होता है. सो यू आर समवन, यहाँ पर भी विद द एड ऑफ पेनिकल्स, इट डज शो दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन ओनली. You're putting a lot of hard work. You're very detail oriented. You are putting your duty, commitment, sacrifice to your work. Work आपके लिए worship है 10 years from now. और अभी भी लाइक योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि अभी से लेके 10 सालों तक वर्क इज वर्शिप फॉर यू. आप बड़ा डिटेल ओरिएंटेड होके काम करो, और ऐसा काम और कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपका बड़ा यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है. एंड देयर इज दिस फेमिनिन टच इन योर वर्क एज वेल. फेमिनिन टच हमेशा यूनिकनेस, हमेशा एक सुकून लेकर आता है. वो चीज़ आपके काम में ज़रूर है. And somehow your mother or some motherly figure is going to be really proud of you, will really appreciate what you have become. She's going to be really proud. उनका social status आपकी वजह से बढ़ेगा. So that can be seen, some mother or motherly figure का. And something more, pile number 2 के लिए इंटरव्यू पाइल नंबर 2 के फ्यूचर सेल्फ काम ले रहे हैं. तो कैसी है लाइफ पाइल नंबर 2 की 10 years from now? What they have become, what they have really become. So we have mother card here, nurturance, patience, unconditional love,
joy in giving birth to life. So it does show that your mom or some motherly figure is really going to be proud of you, pile number 2, 10 years from now. And some of you guys are also becoming a mother or a father 10 years from now, and you guys really feel proud of your own self that you have become a parent. You have been responsible for a new life, responsible for a human. You have created this human. So many of you are parents 10 years from now. This is also the role you are doing 10 years from now. And then we have love card here. So you are someone, you have become someone जिसके अंदर बहुत सारा प्यार दुनिया के लिए है, और दुनिया भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. पाइल नंबर 2, 10 years from now, you have done something for other people. जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तभी उसके मन में हमारे लिए जो है शुभ भावना, शुभकामना आती है, इज्जत, प्यार, सम्मान बढ़ता है. So you have done something 10 years from now for other people, because other people really love you, really like you a lot, because you have really inspired them, you have really nurtured them in a way. Then we have the dog, loyalty, sincerity, unconditional love. So you're going to feel this unconditional love. People are going to really love you. Your family is going to be, it's really, they love you a lot. And you are also someone, pile number 2, जो घर का सबका प्यारा है. Like everyone at home really loves you. 10 years from now, you may even have a pet dog at home. And what I also feel is कि you guys can be आर्द्रा individuals, you guys can be मूला individual. जैसे आर्द्रा जेमिनी साइन में होता है और सेजिटेरियस साइन में मूला नक्षत्र होता है. मूला और आर्द्रा ऑपोजिट नक्षत्र है एक तरह, और आई शुड से मूला और आर्द्रा थोड़ा सिमिलर नक्षत्र है, ऑपोजिट तो नहीं, सिमिलर नक्षत्र है. मूला is also about destruction, the goddess Kali, and Ardra is a nakshatra related to Shiva, जो कि third eye opening वाला है, which is about destruction. So that is there. Especially Ardra represents dogs. It represents dogs. ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 कि you are born in a family जो कुत्ते बिल्ली नहीं पालना चाहते घर पे, because it's too much of work, it's too much of hustle. So 10 years from now आपने कोई पेट डॉग पाला ज़रूर हुआ है घर पे ही, बट हाँ, आप एक ऐसे परिवार में बॉर्न हुए जो डॉग्स कैट नहीं पालना चाहता घर पे, but you really can get connected to your dog which you will have 10 years from now. You feel that this is my person, this dog is my person, this is my loyal friend. You feel this way. And आई डू फील कि एक डॉग भी हो सकता है या फिर 2-3 डॉग्स भी हो सकते हैं, फिर एक डॉग और 2 cats, दैट कैन इवन हैपन, एंड दे आर गोना बी रियली लॉयल टू यू. दे विल समहाउ यू फील कनेक्टेड टू देम. ये यहाँ पर शो हो रहा है. समथिंग मोर स्पेशली अबाउट योर career, and I should say love, relationship, romance, career, finance. So we have the star card, peace and healing, about your relationship, about your personal life. So you are at peace, you are healing other people as well in your personal life. You are really connected to your family. ये यहाँ पर शो हो रहा है. एक सुकून जो है आपको अपने घर में महसूस होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है. अगर घर में ही नहीं महसूस हो सुकून तो फिर कहाँ पे मिलेगा. Then we have the 4 of shells. So it is for your career. Career में यहाँ पर soul searching और re-evaluation ये यहाँ पर show हो रहा है. It does show कि 10 years from now आपने कोई ऐसा करियर अपने लिए पिक करा है जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करता है, जो आपके पर्पस को फुलफिल करता है. अभी से लेके 10 years from now तक आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है, 10 years तक, अभी से लेके 10 years तक, कि यू हैव चेंज्ड मैनी जॉब्स, यू हैव चेंज्ड मैनी करियर्स, बिकॉज आपको हर करियर से या हर जॉब से बड़ा डिससेटिस्फैक्शन महसूस हुई और आपको ऐसा फील हुआ कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वांट टू डू, बिकॉज ये मेरी सोल पर्पस को फुलफिल नहीं करे. यू कैन इवन हैव सन मून कंजंक्शन इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2 इन द मेन बर्थ होरोस्कोप, या फिर इन द नवांशा चार्ट में, या फिर इन द D12 चार्ट, द्वारादमशा चार्ट में. सन मून कंजंक्शन जो है, अगर मून जो है बिहाइंड द डिग्रीज ऑफ सन है
तो इट्स अ वेनिंग मून एंड इट शोज कि आपके लिए डेट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड सन मून कंजंक्शन वाला पर्सन वीक आई से भी डील करता है. एट अ वेरी यंग एज, एट अ वेरी अर्ली एज दे हैव टू स्टार्ट टू वेयर ग्लासेस. और ये अमावस्या का मून हो जाता है, डार्क मून हो जाता है अगर सन मून का कंजंक्शन विद इन 10 डिग्री है. तो बिहाइंड द डिग्रीज अगर मून है तो उसको रहता है, पूरी उम्र ही रहता है ये आइडेंटिटी क्राइसिस. स्पेशली जब सन और मून की अंतरदशा महादशा चलती है विमशोत्री में, तब उस पर्सन को बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है और वो अपना करियर को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि करियर उसका कर्मा है, एफर्ट है. अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा, वो ज़रूर चेंज करेगा अपना करियर. अगर किसी का मून जब आफ्टर द डिग्रीज ऑफ सन है, वैक्सिंग मून है, यानी सन लेट्स से 19 डिग्री पर है, मून 23 डिग्री पर है, तो दिस इज़ अ वैक्सिंग मून. तो आगे है मून सन की डिग्री से. तो इट शोज कि आपका आइडेंटिटी क्राइसिस 35th ईयर तक ही रहेगा, उसके बाद आपको तंग नहीं करेगा. यू विल फाइंड योर आइडेंटिटी, यू विल फाइंड योर पर्पस. प्रॉब्लम उसके लिए ज़्यादा है जिसका मून बिहाइंड द डिग्रीज ऑफ सन है. जैसे किसी का सन 20 डिग्रीज पर है और मून 15 डिग्रीज पर है, तो हाँ, इस पर्सन के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन 35 के बाद भी पूरी उम्र एक आइडेंटिटी क्राइसिस महसूस करता है. तो विद द 4 ऑफ शेल्स कार्ड, आई डू फील दैट यू आर गोना चेंज मेनी जॉब्स, मेनी करियर इन योर लाइफ, पाइल नंबर 2. और आपको वो करियर फिट बैठेगा जो थोड़ा फैसिनेशन या बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स, बड़ा ही अनकन्वेंशनल हो और आउट ऑफ द बॉक्स करियर हो, जिससे आप दूसरे लोगों को एक पर्पस खुद भी महसूस कराओ. मतलब आपको पर्पस तब मिलेगा जब आप दूसरे लोगों को पर्पस देते हो, जब आप दूसरे लोगों को डायरेक्शन देते हो. तो सर्विसेबल जॉब्स आपको वो अच्छी लगेगी, उससे आपको पर्पस महसूस होगा. किसी की लाइफ बेटर करना, इससे आपको पर्पस महसूस होगा. तो somehow like your work is going to be very much connected to other people, like being a life coach, being a life guru, being someone who understand other people's problem and guide them, advise them on that. Many of you are becoming astrologers or tarot card readers or reiki healers or psychics. तो ये वर्क भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. What I also feel is with the swan card here, with the star card here, is that कि you guys are becoming psychics or you guys are becoming some sort of healers. और motherhood भी जो है इसी को शो करता है, nurturing other people, nurturing some soul, nurturing a child. तो mother, कोई psychic healer या किसी भी तरह का healer, वो डॉक्टर भी हो सकता है, और अगेन टैरो कार्ड रीडर, पीपल हु डील विद एनर्जीज ऑफ अदर पीपल. तो ये जो काम है ना, जो ये काम करेगा, सीधी सी बात है, उसको खुद भी हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटल हीलिंग भी और फिजिकल हीलिंग भी. और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उस पर्सन को बॉडी में फेस करनी पड़ेगी, अपनी नेक रीजन में, अपने शोल्डर रीजन में, अपनी बैक पर, अपने जो ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ, और जैसे अगेन हमारी जो गर्दन है ये लाइक यहाँ पर, और इवन कॉलर बोन, शोल्डर, ये जो है स्टिफ रहेंगे, इनमें प्रॉब्लम रहेगी. और ये प्रॉब्लम अभी भी आपको हो सकती है पाइल नंबर 2. ये सारी प्रॉब्लम, यहाँ पर दर्द, इन एरिया में स्टिफनेस, इन एरिया में ठंड बहुत जल्दी चढ़ जाना, तो अकड़ा रहना ऊपर का शरीर, तो ये प्रॉब्लम जो है आप अभी भी डील कर सकते हो और फ्यूचर में यहाँ पर डील करते हुए नजर आ रहे हो. इट्स नॉट कि आपकी बॉडी में कमी, इट्स जस्ट कि आप काम कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर आप दूसरों को दे रहे हो और आपको रिसीव कम हो रहा है. Come in the sense कि you are giving healing, you are giving that peace to other people, you are guiding other people, you are shaping their future, you are giving them some direction, you are giving major things to them. और वो कैसे दे रहे हो? वो अपनी खुद की ऊर्जा से, अपनी खुद की एनर्जी से दे रहे हो. इस वजह से बॉडी में वीकनेस होगी इन एरियाज में. So you have to again do your own healing as well. You have to nurture yourself as well. जिसको again motherhood में हम postpartum depression भी कह सकते हैं, जिसको हम motherhood is definitely something जो burn कर देता है हमें. It is like that. So many of you will feel burned when you guys are parents, and many of you guys will feel that stiffness, especially in the upper body, when you again are doing work related to nurturing other people, healing other people, being a psychic, dealing with energies. तो ऐसे काम आप कर रहे हो पाइल नंबर 2. and especially आपने मून कार्ड भी पिक करा है. मून इज ऑल अबाउट इंटुइशन, गोइंग
गोइंग विद इन, इंटरनल वर्क को शो करता है मून। तो आप ऐसा काम जो हो करते नजर आ रहे हो और दूसरे लोगों को रियल लाइफ से निकाल के थोड़ा आप उनको फैसिनेशन वाली लाइफ में रखते हो थोड़े समय के लिए, ताकि वो स्ट्रांग होके निकले, रियल लाइफ में अपना अच्छे से काम कर पाए। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ वी आर नॉट गिविंग आवरसेल्फ द ब्रेक, हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे रियल लाइफ में। एंड दैट्स व्हाई पीपल गो टूवर्ड्स alcohol, people go towards marijuana etc, some other drugs, क्योंकि जो ड्रग्स पे भी होता है, जो अल्कोहल भी खूब कंज्यूम करता है, जो ये सब चीज़ों का यूज़ करता है, वो यही कहता है, उसको ऐसा फील होता है मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, आई एम इन सम अदर लोक ओनली, आई एम इन सम अदर डायमेंशन ओनली। और जो मेडिटेशन करता है वो भी यही कहता है कि आई एम इन अ डिफरेंट लोक, आई एम इन अ डिफरेंट डायमेंशन ओनली। तो या तो नेचुरल DMT एक्सपीरियंस ले लो, मेडिटेशन के थ्रू ले लो, अपनी फैसिनेशन, अपनी लाला वर्ल्ड में रह लो, या फिर इन चीज़ों के थ्रू इन लाला लैंड या फिर ये अदर डायमेंशन को फील करो इन अल्कोहल या इन ड्रग्स के थ्रू। पर हर कोई एस्केप चाहता है, एंड समहाउ यू आर एबल टू गिव दैट एस्केप टू अदर पीपल फॉर सम टाइम, एंड दे अगेन गेट energized and they would again come back to you to again get that energy going. फिर यहाँ पर ये वाला कार्ड हम पुल आउट करेंगे आपके फाइनेंसेस के लिए। सो वी हैव द सन कार्ड, वी हैव वाइटलिटी, वी हैव जॉय, यू आर बाइंग व्हाटएवर यू वांट टू बाय, यू हैव द मनी, यू हैव द फेम एज वेल। मनी के साथ फेम भी है, जितना मनी बढ़ता है उतना फेम बढ़ता है, जितना फेम बढ़ता है उतना मनी आपके पास आता है। तो समहाउ यू गाइज हैव द फेम एज वेल, यू आर हैप्पी विद द मनी यू आर अर्निंग। तो मनी की यहाँ पर कमी आपको नहीं होगी, यू आर अर्निंग रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड या so this is what we are getting for you, pile number 2, about your future self. तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगेन आई वुड से कि कैंसर साइन, जेमिनाई कैंसर और सेजिटेरियस साइन, इवन स्कॉर्पियो, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है। इवन एरीज, आपका सन जो है 10th हाउस में प्लेस हो सकता है, सन कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस हो सकता है, फिर सन एरीज साइन में प्लेस हो सकता है इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर नवांश या फिर इन द D10 दशांशा चार्ट, पायल नंबर 2। दशांशा अगेन हमारे करियर रिलेटेड चार्ट है। तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, एंड वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु। फिर पुनर्वासु स्पिल करता है कैंसर साइन में, एंड देन पुष्या वी हैव अश्लेषा। फिर स्कॉर्पियो साइन में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, श्रावण, और एरीज में वी हैव अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो ये नक्षत्र, ये साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। इन नक्षत्र, इन साइंस में जो है प्लैनेट्स प्लेस होंगे, सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका, सेनेट, असेंडेंट, लॉर्ड, और सम अदर प्लैनेट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी प्लेस इन दीज साइंस, इन दीज नक्षत्र, इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 या फिर इन द D10 दशांशा चार्ट। So this is what we are getting for you, pile number 2. So do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do let me know how this reading resonates with you, and also write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets or on the website itself, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the sun card here. Let's get started with your reading. So हम मेन टैरो से शुरू करने वाले हैं. Let's start the interview. Interview of pile number 3 is future self 10 years from now. जो pile number 3 की life है, उनकी future self है, वो कैसी है? Their career, finances, relationship. Let's meet your future self, pile number 3. Who have you become 10 years from now? Who have you become, pile 3? Okay, so we have 3 of Cups. Okay, it shows celebration. All right. Then we have
4 of Swords. All right. Then we have 2 cards here. Ace of Swords. We have 5 of Pentacles. End of the deck mein we have 10 of Pentacles. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Number 1 is ki pile 3, you guys are living kind of far away from your parents, from your family you came from. आप उनसे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हो, उनसे काफ़ी दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो, दूर हो चुके हो. एंड यू हैव योर ओन फैमिली, बट यू हैव योर ओन फैमिली, यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, यू हैव pets, and I do feel that you can come from a family, pile number 3, जो pets को allow नहीं करती थी. यानी you could have wanted a cat or a dog in your home, you wanted to have your own pet, but your parents didn't allowed you because extra work है, कौन काम करेगा, कौन responsibility लेगा, नहीं. So like you came from that kind of family, but you love dogs, you love cats as well. So 10 years from now you have dogs, you have cats at home, and you have your own family, you have your own friend circle. And I do feel कि जो आपका friend circle है ना, वो आपकी कास्ट, आपके community से बड़ा different friend circle है, आपके culture से बड़े different लोग हैं जो आपके दोस्त बने हैं. Like many of you guys are going to far away distant foreign countries, foreign places, और वहाँ पर आप दोस्त बना रहे हो, और वो again foreigners हैं, literally foreigners हैं, different cultural ethnic background के वो लोग हैं, but आपका belief system उनसे मिलता है. तभी आप उस कंट्री की तरफ खींचे चले जाओगे, क्योंकि आपका उधर कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ है जो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा. तभी वो एक कंट्री से, कोई ऐसी कंट्री ज़रूर है पाइल नंबर 3 जिससे आप खींचे चले जाते हो. आपका मन करता है कि मैं उस कंट्री में जाके रहूं, समहाउ मेरा वीज़ा लग जाए और मैं उस कंट्री में जाकर रहूं, क्योंकि यू विल ऑलवेज फील कनेक्टेड, यू विल ऑलवेज फील वो एक वो पुल कर रही है वो कंट्री आपको अपनी तरफ, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं पास्ट लाइफ में जिनसे आप मिले थे, और इस लाइफ टाइम में आपका उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है इनफैक्ट, तभी आप उस कंट्री की तरफ खींचे चले जाओगे. यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है इन कंजंक्शन विद एस ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ कप्स. तो आई डू फील देयर विल बी फेल्ड फ्रेंडशिप्स फॉर श्योर, बट आपके कुछ ऐसे दोस्त नज़र आ रहे हैं जो अगेन डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं. और with the 4 of swords I do feel that 10 years from now you are dealing with some, or you have actually dealt with some health issues, जो अभी से लेकर 10 सालों तक का जो समय आपकी फ्यूचर सेल्फ ही कह रही है कि आपने हेल्थ इश्यूज से काफ़ी डील करा है. एंड यू ऑल्सो रियलाइज कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स है, या कौन आपका सच में साथ देते हैं और कौन आपका सच में साथ नहीं देते. यू हैव रियलाइज दैट. वही बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी आंखों का नंबर बढ़ता रहता है, पर हम दूसरे लोगों को सी थ्रू कर जाते हैं कि ये कैसा इंसान है, चाहे आंखों का नंबर बढ़ रहा है फिर भी हमें पता लगता रहता है. सो यू हैव already matured up in the 10 years. And you realize who your true friend is and who is not your true friend. And the thing is कि अभी से लेकर 10 सालों तक का जो समय है वो हेल्थ इश्यूज़ वाला ज़रूर हो सकता है, पर 10 years from now वो हेल्थ इशू ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड ऐसा नहीं है एक ही हेल्थ इशू आपका चली जा रहा है, नहीं, अलग अलग हेल्थ इशू से आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक डेट है, तो यू हैव टू पे थ्रू योर बॉडी. ये यहाँ पर शो रहा है. मैनी ऑफ यू डू हैव डाइजेस्टिव इशूज़, मैनी ऑफ यू आर द पीपल जो स्पेशली जब आप मेंटल हेल्थ इशू से डील करते हो ना, कि किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, दे बैक स्टैब्ड मी. तो जब आप इमोशनल टर्मोइल से गुजरते हो ना पाइल नंबर 3, तब आपको फिजिकल टर्मोइल से भी गुजरना पड़ता है. उसके कुछ ही समय बाद आपकी बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है, एंड यू स्टार्ट टू डील विद बैक पेन, यू स्टार्ट टू डील विद शोल्डर पेन, यू स्टार्ट टू डील विद indigestion. All that start to happens, and you have so much of anger, irritation, frustration, and so much in you, so much within you. And you know what, आप कहीं ना कहीं अभी से लेके 10 सालों तक काफ़ी इंट्रोवर्टेड होते हुए नज़र आ रहे हो. somehow you are raising your voice, you are
यू आर बीइंग कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बट आप अपनी वॉइस ज़रूर रेज करने वाले हो अभी से लेकर 10 साल के बीच में. यू आर रेजिंग योर वॉइस. एंड जो चीज़ों को आप अवॉइड या जिन लोगों को आप अवॉइड करते फिरते हो या फिर बचते फिरते हो, उन लोगों को अब आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, अब उन लोगों को आप फेस कर रहे हो. क्योंकि और लाइक कि बहुत हो गया, मैं कब तक अपने अंदर ये चीज़ लेके घूमूंगा या घूमूंगी. इससे अच्छा है मैं बोल ही दूँ. वो अंदर मेरे जाने से अच्छा है कि मैं बोल ही दूँ. वो अगर पॉइजन मेरे अंदर है, इट्स बेटर कि मैं बाहर उसको निकाल दूँ ताकि मैं तंग ना हूँ. ये भी एक तरीका होता है टू डील विद टर्मोइल, टू लेट इट आउट. कई बार हमें होता है ना कि नहीं नहीं हमारे रिश्तेदार ने हमें ऐसा कुछ कह दिया ना, हमें चुप ही रहना चाहिए, हमें चुप ही रहना चाहिए. बट कई बार वो चुप्पी भारी पड़ जाती है हम पर ही, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते जाते, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है. इससे अच्छा है कि उसको 2 लाइन बोल ही दो, 2 लाइन बोल ही दो. उसने आपको चिढ़ा दिया, आप भी चिढ़ा दो. सो ये भी एक वे होता है टू डील विद टर्मोइल्स, टू डील विद बिटर रिलेशनशिप्स. बिटर रिलेशनशिप को आप बेटर तभी कर पाओगे जब आप बेटर हो जाओगे, जब आप में बिटरनेस खत्म होगी. सो यू हैव टू लेट इट आउट, यू हैव टू लेट इट आउट एंड यू आर डूइंग दैट. अगेन आपने सन कार्ड को पिक करा है. सन इंटरनल नहीं होता है, सन हमेशा एक्सटर्नल चीजों को शो करता है. सन एक्सट्रोवर्टेड नेचर को शो करता है, इंट्रोवर्टेड नेचर को शो नहीं करता. तो समहाउ यू आर बिकमिंग एक्सट्रोवर्टेड, समहाउ यू आर रेजिंग योर वॉइस कि अरे मेरे साथ ये हो रहा है, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो. सो लाइक यू आर रेजिंग योर वॉइस, यू आर टेलिंग दैट दिस इज हाउ थिंग्स आर. Don't do this. You're being very straightforward. You're not avoiding people जिनको आप अभी तक अवॉइड करता है क्योंकि आपको लगता था कि मैं उनको फेस करूंगा तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगी. और लाइक ना, आई वॉन्ट टू फेस देम नाउ. अब कुछ भी हो जाए मैंने फेस करना है. आई डोंट वांट बी इन दिस बेचारी वाली सिचुएशन अगेन. बेचारों वाली सिचुएशन में मुझे नहीं रहा. सो यू हैव बिकम एन एक्सट्रोवर्ट हियर. एन एस ऑफ स्वॉर्ड शो करता है. अब मैं क्लैरिटी लेकर आऊंगा, अब मैं उनको कट करूंगा जो मेरे को कट करते आए हैं. एस ऑफ स्वॉर्ड जो तलवार है, आई मीन आई डोंट नो लाइक मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस थिंग और नॉट. जब तलवार निकलती है तो खून मांगती है. सो लाइक नॉट लिटरली यू आर फाइटिंग, बट इट शोज कि स्वॉर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी है. थॉट्स को अब बाहर निकालना मुंह से, कम्युनिकेशन से, वो एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की. और अगेन टेलिंग अदर पीपल हे डोंट डू दिस, बिकॉज इफ यू डू दिस, आई एम टेलिंग यू डोंट डू दिस, बट इफ यू स्टिल डू दिस आई एम गोइंग टू डू दैट टू यू. सो एक तरह से अब आपने तलवार उठा ली है. अब जो कोई भी तंग करेगा आप उसको छोड़ने नहीं वाले हो. सो ये कहीं ना कहीं नेचर में चेंज आ रहा है, तभी आपका फ्यूचर ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड यू आर रियली इंटेंस, ऑल राइट. यू आर कंसिस्टेंट विद योर एफर्ट्स, ये यहाँ पर नजर आ रहा है. तब जाके आपका फ्यूचर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ ऐसा है. 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ मनी वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली. आपको फ्रेंडशिप्स की भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. लाइक योर पेरेंट्स और अदर पीपल में से कि अगर आप सभी से इतना डायरेक्ट कट टू कट बात करोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहना पसंद करेगा, कोई सभी आपको अवॉइड करेंगे, कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा. बट द रियलिटी इज, यू नो व्हाट, फाइल नंबर 3, यू हैव 2 फ्रेंड्स विद यू. ज़्यादा नहीं है, 2-3 दोस्त हैं आपके जो आपके लिटरली हमेशा साथ है. दोस्ती वो अच्छी चलती है, लंबी चलती है जिसमें क्लियर कम्युनिकेशन हो, जिसमें क्लैरिटी हो. सो यू बीइंग कट थ्रोट, यू बीइंग क्लियर, तो again your parents may say, your loved ones may say that you're being cut throat, you should not do this. ऐसे तो तुम सभी से कट जाओगे, अकेले रह जाओगे. बट द रियलिटी इज नहीं, ऐसा नहीं है. देर आर पीपल लाइक यू who have similar belief system like you, और वो लोग आपके दोस्त बन रहे हैं. पर वो लोग एक डिफरेंट कंट्री में रहते हैं और आप भी उस डिफरेंट कंट्री में जाओगे अभी से लेके 10 ईयर्स के विद इन. यू विल गो टू दैट कंट्री. 5 ऑफ पेंटिकल्स यही शो करे, जो आपकी करंट फैमिली है या जो आपका करंट घर है उसमें आप नहीं रहोगे क्योंकि वहाँ के लोगों से आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, अकेला छोड़ दिया मुझे, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मुश्किल में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, फाइनेंशियली मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा अकेलेपन को कोई नहीं सुन रहा है और समझ रहा है. तो लाइक यू मे फील दिस वे अबाउट योर करंट फैमिली, और जिस जगह पर आप रहते हो उस जगह पर आपको ऐसा महसूस हो. एंड आप अपनी बात जब अपनी आवाज़ रेज करते हो, यू like your loved ones can say, the people you're living right now with, they say कि तुम अकेले ही रह जाओगे. but the reality is ऐसा नहीं है. 10 years from now you have people with you, you have built your own family as well, and they love you for who you are.
they really love you for who you are. And you're again a really grounded person. आप egoistic नहीं हो. You're really a humble and a grounded individual. You can have Sun Ketu conjunction, which of course show that you will have to fight with your father at one point in life. एक strong fight आपकी अपने father से ज़रूर होगी. Strong आपको अपना खुद का एक stand लेना पड़ेगा against father. But again, you're still a very humbled individual with Ketu Sun conjunction, because Ketu detachment है और Sun ego है, तो ego से you're detached. You're becoming really a humbled individual. You're creating your own family as well. Let me pull some more cards here. 10 years from now, like who have you become? Pile number 3. 10 years from now, who have you become? Okay, so we have slave here. It says surrendering your power of choice to the divine with complete trust. So yes, like you have become more spiritual as well. Slave word right नहीं है, but it does show कि you understand कि slavery क्या है, because you have done that in your life. You have gone through that. You have understood कि या तो दूसरे इंसानों के slave बन जाओ, या फिर become a slave to the divine, meaning कि you have handed over your life to God. You have surrendered yourself completely to God. क्योंकि जब एक इंसान अकेलेपन से गुजरता है, जब एक इंसान एक ऐसे समय से गुजरता है जहाँ पर उसको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स है, उसको करियर में भी उसकी पॉलिटिक्स चल रही है, लोग उसके अगेंस्ट है, परिवार में भी उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, और उसका शरीर खुद का भी साथ नहीं दे रहा है, जब चारों तरफ से धक्के मिलते हैं, जब चारों तरफ से कोई साथ नहीं मिलता है, तब एक इंसान जो है क्या फील करेगा? यही फील करेगा कि मैं वक्त का गुलाम हो गया हूँ और मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है. इट फील्स दैट वे. एंड देन अ पर्सन, जब उसके पास कुछ नहीं रहता ना, देन दैट पर्सन एक्चुअली, तब ही जो है वो इंसान अपने आप को सरेंडर करता है टू डिवाइन, क्योंकि अब उसके पास बचा तो कुछ नहीं है. वही बात है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है, या फिर अकेले आए थे अकेले ही जाना है. सो वो सब बातें याद आ जाती है. वो अगेन स्पिरिचुअल भी वो इंसान हो पाता है जो हर जगह सोसाइटी में धक्के खा रहा होता है, जिसका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है. जब वो सब कुछ गंवा चुका होता है, तब वो भगवान को याद करता है. जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब कोई नहीं भगवान को सच में याद करता, तब कोई नहीं सच में जो है अपना हर चीज़ सरेंडर करता. क्योंकि भगवान तो गरीब निवास है, वो तो गरीबों का भला करता है. और जो अमीर है वो भगवान के पास जाता ही नहीं है. सच में देखो, पूजा करते तो आपको सारे लोग मिलेंगे, अमीर गरीब हर कोई पूजा करता हुआ मिलेगा. वो बस फिजिकली पूजा कर रहा है, क्या उसका मन कनेक्टेड है? और कितने समय के लिए? और हम सच्ची बात कहें ना, सच में मैं भी अगर इस बात को देखूं खुद भी, तो हम भगवान से कुछ ही सेकंड कनेक्टेड रह पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बिल्कुल बंदर जैसी है. हम कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है. अगर हम खाना खाने वाले, उससे पहले हम भगवान को याद करते हैं और उसको भी वो खाना सर्व करते हैं, तब भी कुछ सेकंड ही योग लग पाता है, तब भी कुछ सेकंड ही वो जोड़ लग पाता है, और फिर हम अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं. तो बहुत सेकंड्स का वो रिलेशनशिप होता है. पर जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचता, तब हम अपना 100% टाइम उस भगवान को देना पसंद करते हैं, क्योंकि अब वही तो है हमारे पास. तो समहाउ अभी से लेके 10 ईयर्स के विद इन आप इन चीज़ों से गुजरने वाले हो. ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि जिनको आपने अपना सहारा बनाया, वो सहारे छूटेंगे, टूटेंगे. And then you have to really surrender yourself to the divine. And when you do that, suddenly you will start to notice कि चीज़ें वर्कआउट करना शुरू होगी. याद तो करा ना भगवान को, पहचाना तो है ना भगवान को, इसी का ही फल आपको बहुत अच्छा मिल जाता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि इतनी हार्डशिप्स के बाद यू काइंड ऑफ गेट योर ओन फैमिली, यू गेट सराउंडेड विद लव, यू ऑल्सो स्टार्ट टू अर्न मोर. कुछ सेकंड भी, कुछ समय भी जो हमारा ध्यान रखता है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो वो हमारा कितना कुछ करने को तैयार हो जाता है. सो समहाउ लाइक अगेन when you become more spiritual in nature, when you surrender yourself
यू गेट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन जो कि अबंडेंस इन एवरी एस्पेक्ट को शो कर रहा है. मनी वाइज भी अबंडेंस, मतलब फाइनेंशियली भी अबंडेंस, परिवार में भी पूरा सपोर्ट मिलना, अपना खुद का परिवार होना, पेट्स भी रखना, और वो हर चीज़ खरीद पाना जो आपका मन करता था हमेशा से. देन वी हैव द am I singing my song? So it shows that you are becoming again a unique creature, a unique self. You have your own unique self, and आप दूसरों की टोन पर, दूसरों की गाने पर डांस नहीं कर रहे, आप अपना गाना गुनगुना रहे हो और उस पर अपना डांस कर रहे हो. यानी कि आप अपनी ही कोई चीज़ कर रहे हो, आप दूसरों के यहाँ पर स्लेव नहीं हो. You're not a slave for to other people. You are in your own rhythm. You are dancing on your own tune. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. And 10 years from now, I feel कि आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा गॉड को लेकर भी, स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी, वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा. पाइल नंबर 3. Then you have what do I know without knowing why or how. It says crack walnut tree. So what do I know without knowing why or how? तो दिस कार्ड शोज कि जो लोग कहते हैं ना कि रेटोरिकल क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं है, यू समहाउ हैव दोज आंसर्स विद यू. जो भी आपके मन में सवाल रहते हैं लाइफ को लेकर, गॉड रियलाइजेशन को लेकर, सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर, कहीं ना कहीं आपके पास उनके जवाब ज़रूर हैं. And somehow you can even guide other people in their spiritual journey. That is shown. Spirituality is way different than religion. So you kind of bring clarity to other people about the spiritual concepts 10 years from now. यहाँ पर specifically career, finance और relationship को लेकर कुछ information. करियर के मामले में वी हैव द किंग ऑफ क्रिस्टल्स. अगेन किंग ऑफ क्रिस्टल इज किंग ऑफ पेनिकल. इट सेज करेज, कमिटमेंट. करियर में आप बहुत कमिटेड हो, आप करियर में अपना 100% दे रहे हो. यू लव योर करियर, यू आर अर्निंग वेरी वेल फ्रॉम योर करियर. घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आप उंगली टेढ़ी भी कर लेते हो, और जिससे आप कमिट कर लो अपने करियर में कि ये काम मैंने करना है, तो वो काम आप पूरा करते हुए नजर आ रहे हो. यू आर द किंग, यू आर द बॉस इन योर फील्ड, यू आर द बॉस इन योर करियर, यू आर द पीक एट योर करियर. कहीं ना कहीं यू कैन हैव जुपिटर राहु कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल नंबर 3 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर नवांशा में, या फिर D12 चार्ट में. जुपिटर राहु कंजंक्शन, या फिर राहु इज 5 places और 9 places अवे फ्रॉम जुपिटर, दैट कैन इवन हैपन. लेट्स से जुपिटर असेंडेंट में है, फर्स्ट हाउस में है, राहु 5th हाउस में हो सकता है, या फिर आपका राहु 9th हाउस में हो सकता है, या फिर राहु इज कंजंक्ट विद जुपिटर. ये यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है. तो राहु इज अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, और आपका जो अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स नेचर है उसकी वजह से आपको एक लीडरशिप पोजीशन मिलेगी, उसकी वजह से लोग आपको बड़ा एडमायर करेंगे. आपके अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन, उससे बड़ा एडमायर करते हैं उस चीज़ को लोग. दैट्स व्हाई दे टोल्ड यू टू बी द लीडर, दे गेव यू द लीडरशिप पोजिशन. कहीं ना कहीं आपने लोगों के दिलों पर राज करा. एक होता है बाहुबल से राज करना, एक होता है लोगों के दिलों पर राज करना. सो यू आर डूइंग दैट 10 years फ्रॉम नाउ. देन वी हैव 3 of Wands. इट सेज फोरसाइट, इट सेज एक्सप्लोरेशन. तो ये आपके फाइनेंसेस के लिए आया है. आप दूर दृष्टा रखते हो, आप दूर की सोच के चलते हो, और इस वजह से जो है यू हैव लॉट ऑफ मनी. समहाउ यू न्यू कि अगर मैं ये काम करूँगा या करूँगी, जो अगेन एक आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है पाइल नंबर 3, जिसके थ्रू आपको मनी आ रहा है, और आपको उन पेटी फाइट्स पर, छोटी छोटी बातों पर नहीं ध्यान देना चाहिए, और अपने उस गोल पर ध्यान आपका होना चाहिए पाइल 3, उस लॉन्ग टर्म गोल पर. उस लॉन्ग टर्म गोल से आपको काफ़ी मनी आ रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और मनी की यहाँ अबंडेंस है, क्योंकि अगेन पेंटिकल्स का भी कार्ड है. लिटरली ये वाला जो कार्ड है ना 5 of Pentacles, ये पॉवर्टी को शो करता है, और उसके बाद जो नीचे आया एंड ऑफ द डेक में कार्ड, वो 10 of Pentacles है. मतलब आप अपनी लाइफ में एक डाउनफॉल जरूर देखोगे,
अप से पहले. अगेन यू कैन हैव पुनर्वासु काइंड ऑफ प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. पुनर्वासु जेमिनी और कैंसर साइन में होता है, और आपके चार्ट में जुपिटर मर्करी का कंजंक्शन भी हो सकता है पाइल नंबर 3, या फिर मर्करी इज 5 और 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम जुपिटर. लेट्स से जुपिटर इज अगेन इन द असेंडेंट, तो 5th हाउस या फिर 9th हाउस में मर्करी है, इट कैन हैपन. या फिर मर्करी इज कंजंक्ट विद जुपिटर. तो जब भी मर्करी इज ट्राइन फ्रॉम जुपिटर या फिर मर्करी इज कंजंक्ट विद जुपिटर, वो ये शो करता है एक पर्सन अपनी लाइफ में राइज करेगा, बट उस राइज के बाद एक सडन डाउनफॉल आएगा जहां पर उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, एक बार के लिए मिट्टी हो जाएगा, और फिर से जब वो शुरू करेगा एकदम से उसका फिर राइज होगा. दिस हैपेंस, स्पेशली दिस हैपेंस विद पुनर्वासु एंड दिस जुपिटर मर्करी कंजंक्शन और जुपिटर मर्करी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. Then we have 9 of Wands for your relationship. It says power, it says perseverance. So this card shows कि आपकी जो relationship है वो बड़े powerful लोगों के साथ होने वाले हैं. Like the person you may even end up getting married to pile 3, they are coming from a very powerful influential family, या फिर वो खुद एक बड़े powerful influential position पर होंगे. They can be high up in the government or high up in some corporation. They will be the boss or the CEO of that company. So basically you are making connection with really powerful people, और उन powerful लोगों की वजह से भी उनके जब आप संग में रहते हो तो रंग तो लगता है ना संग का. तो somehow their ideas, your ideas, you guys combine that, and that's how you get the 10 of Pentacles वाली situation. That's how you get your happily ever after. But I do feel कि distant far away foreign places में you are gaining that success. जो आप अपने homeland में नहीं कर पाए वो आप far away foreign places में करते हुए नजर आ रहे हो. वो success आपको far away foreign places में मिलती हुई नजर आ रही है, and you are making connection with again people who are very influential, people who are high up in the hierarchy. All right, and you have also, you're developing, the brain is developing, is still in a developing stage. Abhi just before doing this reading I was watching this news of UK के वहाँ पर एक I don't know एक साइंटिस्ट जो कि कैम्ब्रिज से पढ़ा लिखा है, someone from कैम्ब्रिज, वो कहते हैं कि जो हमारा माइंड है हम अडल्ट 30 के बाद बनते हैं, उससे पहले हम अडल्ट नहीं है, क्योंकि 30 से पहले भी वी आर माइंड इज डेवलपिंग. इट्स नॉट डेवलप्ड, इट्स डेवलपिंग. वी बिकम एन अडल्ट आफ्टर द एज ऑफ 30, कुछ वो ऐसा बोल रहे थे. सो व्हाटएवर, लाइक अगेन माइंड जो है वो अडल्ट बन रहा है नहीं बन रहा, ये इस रीडिंग का मोटिव नहीं है. बट व्हाट आई वांट टू से इज के pile number 3, 10 years from now also your mind is developing. No matter what your age is, you're learning new things. You are getting to know your own self. आप अपने आप को भी जान रहे हो, एक प्रोसेस में हो जानने के, बट काफ़ी कुछ आपने सॉर्ट आउट कर लिया, वो भी चीज़ है. So this is what we are getting. All right, pile 3. So astrologically अगर हम देखें, and one more thing, pile 3, do something for your health. अभी से मतलब I know कि you can be doing something for your health right now. Maybe you're taking Ayurvedic medicine, homeopathic medicine, you're doing exercise, you're doing yoga, or you are going to gym, you are trying to sleep at night on time, all that you're doing that. But उसके बावजूद many of you deal with health issues, and I want to say कि इससे दिल छोटा नहीं करना है, इससे उदास नहीं होना. ये आपका कार्मिक डेट है, इसको हंस के चुका देना है, तंग नहीं होना है. All right, and again no one is fit these days. Everyone deals with some or the other health issue. तो क्या हो गया कि आपको ज़्यादा हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है. ये समय में बीत जाएगा, और 10 years from now you are living a very healthy life. आप मतलब 10 years from now आपकी रिवर्स एजिंग हो रही है एक तरह से. अभी हमें फील है कि हम तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ ही जा रहे हैं, बट 10 years from now आप वापस आ रहे हो. यू आर कमिंग बैक अगेन टूवर्ड्स यूथ. You're coming back. रिवर्स एजिंग पर आप आ गए हो 10 years from now. आपकी हेल्थ काफ़ी, जो आपकी हेल्थ आज अच्छी नहीं है ना, मतलब इवन दो यू आर राइट नाउ यंग, 10 years from now एज बढ़ती है, पर उस बढ़ी हुई एज में भी यू फील लाइक कि मेरे अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर अपने टीनेज ईयर्स में नहीं थी, अपनी 20s में नहीं थी, अपनी 30s में नहीं थी, उससे कई ज़्यादा स्ट्रेंथ मैं आप फील कर रही हूँ. तो दिस विल हैपन, दिस विल हैपन. सो हैंग इन देयर. Keep on doing whatever you're doing for good health, but lose मत करो hope.
क्योंकि 10 years from now I do see that you have completely healed from your emotional turmoils, from your emotional depressions. You have completely healed, and physically as well you're healed. So this is what we are getting. All right, pile number 3. So that was it. This was your reading. Astrologically देखे तो Gemini sign, Cancer sign, and I will say even Capricorn, Libra, एरीज. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनाई में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, और फिर कैंसर में स्पिल करता है पुनर्वसु, और वी हैव पुष्या, अश्लेषा. लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा, राइट. एंड सो ये साइंस, ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है. कैप्रिकॉन में वी हैव उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, श्रावण. तो आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, ascendant लॉर्ड, कैन बी प्लेस इन दीज साइंस, कैन बी प्लेस इन दीज नक्षत्रस. ऑल राइट. सो एंड ऑल्सो दैट वाज इट. यही चीज़ें थी. सो ये साइंस, ये नक्षत्र D1 या D12 या फिर D9 नवांश चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. ये साइंस, ये नक्षत्र, यानी इनके अंदर प्लैनेट्स होंगे इन साइंस, इन नक्षत्र में, इन ये वाले चार्ट्स में. सो do let me know in the comment section below how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.